डिस्कस डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस और इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस. Yes, let L1 and L2 be two parallel lines. Line L1 is given by vector R equals vector A1 plus lambda times vector B, and L2 line is given by vector R equals vector A2 plus mu times vector B. राइट ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, सो दोनों का डायरेक्शन वेक्टर सेम, हमने वेक्टर बी लिया. अब हमें इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. राइट, सो दिस इज द लाइन L1. जिस पॉइंट से ये पास कर रही है से पॉइंट A, उसका पोजीशन वेक्टर है वेक्टर A1 और इस लाइन का डायरेक्शन वेक्टर है वेक्टर B. राइट, इसी तरीके से लाइन L2 जिस पॉइंट से पास कर रही है, लेट दैट पॉइंट बी B और उसका पोजीशन वेक्टर है A2 और इस लाइन का भी डायरेक्शन वेक्टर कौन होगा, वेक्टर B, क्योंकि दोनों लाइंस क्या हैं, पैरेलल. राइट, so the shortest distance between the lines L1 and L2 will be the perpendicular distance. So let the distance between L1 and L2 be D. So here BM will be perpendicular to the line L1 and L2. Right, now we are to find this D. Let this angle be theta. Now, in triangle AMB, BM over AB is sin theta. Now, BM is D and side AB means magnitude of the vector AB. This is equal to sin theta. So from here, D will be equal to magnitude of vector AB into sin theta. So we have obtained D is equal to magnitude of vector AB into sin theta. Right? Now look here. Vector B is the direction vector of the lines L1 and L2, and this is the vector AB. Right? So do you agree that theta is the angle between vector B and vector AB? Right? तो अगर मैं यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B क्रॉस वेक्टर AB निकालूँ, it will be equal to magnitude of vector B into magnitude of vector AB into sin theta. Right? So from here, sin theta will be equal to magnitude of vector B cross vector AB over magnitude of vector B into magnitude of vector AB. Now I'll substitute this value of sin theta here. So D will be equal to magnitude vector AB into, yes, put the value of sin theta, it's magnitude of vector B cross vector AB over magnitude of vector B into magnitude of vector AB. This will get cancelled out. So D will be equal to magnitude vector B cross vector AB over magnitude of vector B. Now, vector AB will be equal to, yes, head minus tail, position vector of head, that is position vector of B minus position vector of A. So it will be vector A2 minus vector A1. So therefore, D will be equal to magnitude of vector B cross vector A2 minus A1 over magnitude of vector B. Right?
So this is the formula for finding the distance between two parallel lines. So distance between parallel lines L1 and L2 is given by this, right? For example, find the distance between the lines L1 given by vector r equals I cap plus 2j cap minus 4k cap plus lambda times 2I cap plus 3j cap plus 6k cap. And line L2 is given by vector r equals 3I cap plus 3j cap minus 5k cap plus mu times 2I cap plus 3j cap plus 6k cap. Right? For the line L1, जिस पॉइंट से लाइन पास कर रही है उसका पोजीशन वेक्टर यानी कि वेक्टर A1 इज गिवन बाय दिस, और लाइन L1 का डायरेक्शन वेक्टर होगा ये. सो वेक्टर B1 इज 2I कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप. इसी तरीके से फॉर द सेकेंड लाइन, जिस पॉइंट से लाइन पास कर रही है उसका पोजीशन वेक्टर यानी कि वेक्टर A2 इज 3I कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप, और लाइन L2 का डायरेक्शन वेक्टर है ये 2I कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप. Now look at the direction vectors B1 and B2. They are same. So that means lines are parallel. So we have to find the distance between the parallel lines. Right? और दोनों लाइंस का डायरेक्शन वेक्टर अब हम इसे डिनोट करेंगे वेक्टर B से, विच इज़ 2I कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप. यानी कि इस फॉर्मूला में वेक्टर B जो था वो दोनों लाइंस का डायरेक्शन वेक्टर था, तो जो कि इस केस में होगा 2I कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप. नाउ डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस इज गिवन बाय, yes, it is distance is magnitude of vector B cross vector A2 minus A1 over magnitude of vector B, right? अब इसमें जो चीज़ हमें चाहिए हम उसे फाइंड आउट करेंगे. तो सबसे पहले हम निकालेंगे वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1. दिस इज वेक्टर A1 and this is vector A2. So we have to find A2 minus A1. So I'll get 3I cap minus I cap, that is 2I cap, 3j cap minus 2j cap plus j cap minus 5k cap minus 4k cap, that is minus k cap. And this is vector B. अब हमें निकालना है वेक्टर B क्रॉस वेक्टर A2 माइनस A1 का मैग्नीट्यूड. तो सबसे पहले हमें ये वेक्टर पता होना चाहिए. अब क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट. सो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए डिटर्मिनेंट फॉर्म करेंगे जिसकी फर्स्ट रो होगी I कैप j कैप k कैप. नेक्स्ट रो होगी वेक्टर B के कंपोनेंट्स की जो है 2, 3 एंड 6. देन वेक्टर A2 माइनस A1 के कंपोनेंट्स जो हैं 2, 1, -1. राइट? एक्सपैंड द डिटर्मिनेंट along the first row. I'll get I cap into -3 -6 minus j cap into -2 -12 plus k cap into 2 minus 6. So I'll get minus 9I cap plus 14j cap minus 4k cap. Right? अब हमें निकालना है इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड. सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B क्रॉस वेक्टर A2 माइनस A1 विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ square of -9 plus square of 14 plus square of -4. That is square root of 81 plus 196 plus 16. That is square root of 293. Now we need magnitude of vector B. So this is your vector B. अब इसका magnitude निकालेंगे. That will be square of 2 plus square of 3 plus square of 6. I'll get square root of 4 plus 9 plus 36. That is square root of 49, which is 7. Right? So therefore, distance D will be equal to, yes, substitute the values. This magnitude is square root of 293 over magnitude of vector B, which is 7. So distance between L1 and L2 is this much units. Yes, note that if two lines in space intersect
then shortest distance between them will be 0. Right? If two lines in space are parallel, then shortest distance between them is the perpendicular distance which is given by this. ये हमने अभी स्टडी किया. राइट? अब स्पेस में लाइंस ऐसी भी होती हैं विच आर नीदर इंटरसेक्टिंग नॉर पैरेलल. ऐसी लाइंस को हम कहते हैं स्क्यू लाइंस. सो स्क्यू लाइंस क्या होती हैं? टू लाइंस इन स्पेस which are neither intersecting nor parallel are called skew lines. Yes, note that if two lines in space intersect, then shortest distance between them will be 0. And if two lines are parallel, then shortest distance between them is the perpendicular distance which is given by this. ये हमने अभी स्टडी किया. Now, स्पेस में ऐसी लाइंस भी होती हैं विच आर नीदर इंटरसेक्टिंग नॉर पैरेलल. ऐसी लाइंस को हम कहते हैं स्क्यू लाइंस. राइट? सो स्क्यू लाइंस कैसी लाइंस हैं? लाइंस इन स्पेस विच आर नीदर इंटरसेक्टिंग नॉर पैरेलल. जब लाइंस एक प्लेन के ऊपर लाई करती हैं, यानी कि व्हेन लाइंस आर कोप्लेनर, वो या तो पैरेलल होती हैं या इंटरसेक्टिंग होती हैं. राइट? अब स्क्यू लाइंस जो हैं वो ना तो पैरेलल हैं ना इंटरसेक्टिंग हैं, यानी कि वो एक प्लेन में नहीं हो सकती. सो स्क्यू लाइंस आर ऑलवेज नॉन कोप्लेनर. राइट? स्क्यू लाइंस आर नॉन कोप्लेनर. नाउ वी विल डिस्कस द डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस. Yes, let L1 and L2 be two skew lines given by L1 is vector R equals vector A1 plus lambda times vector B1 and L2 is vector R equals vector A2 plus mu times vector B2. Right? Now, the shortest distance between L1 and L2 is given by this. Absolute value of A2 minus A1 dot B1 cross B2 over magnitude of the vector B1 cross vector B2. Let's see how. This is line L1. जिस पॉइंट से पास कर रही है उसका पोजीशन वेक्टर है A1 और लाइन का डायरेक्शन वेक्टर है वेक्टर B1. इसी तरीके से लाइन L2 जिस पॉइंट से पास कर रही है यानी कि पॉइंट B, उसका पोजीशन वेक्टर है A2 और इस लाइन L2 का डायरेक्शन वेक्टर है वेक्टर B2. Now, here L is the line of shortest distance which intersects line L1 at the point C and L2 at the point D. Right? So, the shortest distance between L1 and L2 is this distance CD. Right? अब ये जो लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है यानी कि लाइन L, इट विल बी परपेंडिकुलर टू L2. अगर L2 के परपेंडिकुलर है तो उसके डायरेक्शन वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगी और ये जो लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो लाइन L1 के भी परपेंडिकुलर होगी. अब L1 के परपेंडिकुलर है तो उसके डायरेक्शन वेक्टर B1 के भी परपेंडिकुलर होगी. दैट मीन्स अगर मैं इस वेक्टर CD की बात करूं, ये वेक्टर CD, इट विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर B1 एंड वेक्टर B2. सो डू यू एग्री? दिस वेक्टर CD will be in the direction of vector B1 cross vector B2. Right? अब इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है दैट इज n कैप विल बी गिवन बाय वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड. राइट? यानी कि ये जो n कैप है इट विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर B1 एंड वेक्टर B2. नाउ दिस CD is the projection of vector AB on line L. Right? अब जब हम एक वेक्टर की प्रोजेक्शन दूसरे वेक्टर पे निकालते हैं
यानी कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी इज गिवन बाय वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर बी। जिस वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन निकालनी है डिनोमिनेटर में उसका मैग्नीट्यूड आता है, राइट। अब यहाँ पर व्हाट इज दिस थिंग, इट इज़ अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी, यानी कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन अनदर वेक्टर बी इज रिटन एज वेक्टर ए डॉट बी कैप, राइट। अब सी डी जो है वो है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए बी ऑन द लाइन एल, सो इट विल बी इक्वल टू वेक्टर ए बी डॉट यूनिट वेक्टर इन दिस डायरेक्शन। वो यूनिट वेक्टर कौन सा है, b1 क्रॉस b2 ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2, राइट। सो दिस इज द लेंथ CD. Now what is vector AB? Yes, vector AB will be, yes, perform head minus tail, position vector of the point B, that is vector A2, minus position vector of the point A, which is vector A1. So here I'll get CD equals A2 minus A1 dot B1 cross B2 over magnitude of B1 cross B2. अब डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव है, सो वी टेक द एब्सोल्यूट वैल्यू। सो डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स इज गिवन बाय एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वेक्टर A2 minus A1 dot B1 cross B2 divided by magnitude of B1 cross B2. Now, let's take a few questions. Find the shortest distance between the lines L1 and L2 whose equations are. Yes, L1 is given by vector r equals I cap plus j cap plus lambda times 2i cap minus j cap plus k cap, and L2 is given by vector r equals 2i cap plus j cap minus k cap plus mu times 3i cap minus 5j cap plus 2k cap. लाइन L1 जिस पॉइंट से पास कर रही है उसका पोजीशन वेक्टर है ये, यानी कि वेक्टर A1 इज I कैप प्लस J कैप। लाइन L1 का डायरेक्शन वेक्टर यानी कि वेक्टर B1 है 2I कैप माइनस J कैप प्लस K कैप। इसी तरह लाइन L2 जिस पॉइंट से पास कर रही है उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर यानी कि वेक्टर A2 इज 2I कैप प्लस J कैप माइनस K कैप, और लाइन L2 का डायरेक्शन वेक्टर है 3I कैप माइनस 5J कैप प्लस 2k कैप, राइट। अब दोनों लाइंस के डायरेक्शन वेक्टर को देखिए, इनके स्केलर कंपोनेंट्स की रेशो, यस 2/3, यहाँ पर 1/5 और यहाँ है 1/2, इक्वल नहीं है, यानी कि ये लाइंस पैरेलल नहीं है, राइट। सो टू गेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस वी शैल बी यूजिंग दिस फॉर्मूला। अब यहाँ पर हमें चाहिए सबसे पहले वेक्टर A2 माइनस A1, सो आई फाइंड वेक्टर A2 माइनस A1, दिस इज वेक्टर A2, दिस इज वेक्टर A1, सो 2I कैप माइनस I कैप 1I कैप, J कैप माइनस J कैप 0J कैप, एंड हियर आई गेट माइनस K कैप। फिर मुझे चाहिए वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2, सो B1 क्रॉस वेक्टर B2 हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट की हेल्प से। सो पहली रो I कैप J कैप K कैप, फिर वेक्टर B1 के कंपोनेंट्स जो हैं 2 माइनस 1 1, फिर वेक्टर B2 के कंपोनेंट्स 3 माइनस 5 एंड 2। ऑन एक्सपेंशन आई गेट वेक्टर B1 क्रॉस B2 एज 3I कैप माइनस J कैप माइनस 7K कैप। नाउ आई वॉन्ट डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स, राइट। So this is vector A2 minus A1 and this is vector B1 cross B2. So इनका डॉट प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, 1 into 3 plus 0 into minus 1 plus minus 1 into minus 7. So I'll get 3 plus 0 plus 7, that is 10. So dot product of these two vectors is 10. अब मुझे चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2, राइट। सो ये था हमारा वेक्टर B1 क्रॉस B2, सो इट्स मैग्नीट्यूड विल बी गिवन बाय स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ 3 प्लस स्क्वायर ऑफ -1 प्लस स्क्वायर ऑफ -7। आई गेट
square root of 9 plus 1 plus 49, that is square root of 59. Now we will substitute the values here. So shortest distance will be equal to absolute value of, yes, this dot product was 10 and magnitude of vector b1 cross b2 was root 59. So shortest distance will be 10 over square root of 59 units. Right? Now note that L1 और L2 लाइंस पैरेलल नहीं थी, ये हमने पहले टेस्ट किया डायरेक्शन वेक्टर्स को देखकर. अब क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब है L1 और L2 आर नॉट इंटरसेक्टिंग. राइट? दैट मीन्स L1 L2 लाइंस ना तो पैरेलल हैं ना इंटरसेक्टिंग हैं. तो ऐसी लाइंस को हम क्या कहते हैं? यस, L1 एंड L2 आर स्क्यू लाइंस. अब क्योंकि ये स्क्यू लाइंस हैं, सो दे आर नॉन कोप्लेनर. ठीक है? यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस गिवन बाय L1. line is given in the Cartesian form and L2 line is also given in the Cartesian form. Right? अब सबसे पहले हमें वेक्टर A1, A2 और वेक्टर B1 और B2 आइडेंटिफाई करने हैं. राइट? अब वो करने से पहले हमें इंश्योर करना है कि x, y और z के कोफिशिएंट्स +1 होने चाहिए. यस, टेक अप द लाइन L1. x का कोफिशिएंट 1 है, सो I'll write this as x minus -1 over 7 equals y का कोफिशिएंट भी 1 है, but I can write this as y minus -1 over -6. z का कोफिशिएंट भी 1 है and it can be written as z minus -1 over 1. Right? तो लाइन L1 जिस पॉइंट से पास कर रही है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं -1, -1, -1. So position vector of that point, that is vector A1, will be -1 i cap, -1 j cap, -1 k cap. और डिनोमिनेटर में जो नंबर्स हैं दे आर द DRs ऑफ द डायरेक्शन वेक्टर, यानी कि डायरेक्शन वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट्स. सो डायरेक्शन वेक्टर B1 क्या होगा? 7 i cap, -6 j cap, +1 k cap. Now we come to the line L2. Yes, यहाँ पर x का कोफिशिएंट है -1, मुझे +1 चाहिए. सो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आई डिवाइड विद -1. सो दिस विल बिकम +x एंड दिस विल बिकम -3 ओवर, और ये -1 बन जाएगा 1 इक्वल्स. यहाँ पर y का कोफिशिएंट 1 है, सो नो चेंज इज रिक्वायर्ड. यहाँ पर भी z का कोफिशिएंट 1 है, नो चेंज इज रिक्वायर्ड. राइट? सो लाइन L2 जिस पॉइंट से पास कर रही है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3, 5 एंड 7. तो पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट विल बी वेक्टर A2, 3i cap plus 5j cap plus 7k cap. और डिनोमिनेटर में जो नंबर्स हैं दे आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द डायरेक्शन वेक्टर, यानी कि डायरेक्शन वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट्स. सो डायरेक्शन वेक्टर B2 विल बी गिवन बाय 1i cap -2j cap plus k cap. Right? Now, डायरेक्शन वेक्टर्स को देखिए. स्केलर कंपोनेंट्स की रेशो 7 over 1, यहाँ पर आएगा -6 over -2 और ये आएगा 1 over 1. बराबर नहीं है, तो यानी कि लाइन्स आर नॉट पैरेलल. सो वी शैल बी यूजिंग दिस फॉर्मूला. ठीक है? अब इसमें सबसे पहले निकालेंगे A2 minus A1. दिस इज A2, दिस इज A1. सो A2 minus A1 विल बी 4i cap plus 6j cap plus 8k cap. Right? Then we will find vector B1 cross B2. डिटर्मिनेंट की हेल्प से. सो इट विल बी -4i cap, -6j cap, -8k cap. अब वेक्टर A2 minus A1 और B1 क्रॉस B2 का डॉट प्रोडक्ट. सो इट विल बी 4 into -4 plus 6 into -6 plus 8 into -8. That is -16, -36, -64. That is -116. Now I need magnitude of vector B1 cross
B2. Yes, this is vector B1 cross B2. So its magnitude will be square root of square of minus 4 plus square of minus 6 plus square of minus 8. I'll get square root of 116. So therefore, shortest distance will be absolute value of, yes, dot product was minus 116 over magnitude of B1 cross B2, which is root 116. So I'll get 116 over square root of 116. That is square root of 116 units. Yes. Next question is, find the shortest distance between the lines L1 and L2 given by this. Right? अब सबसे पहले हमें लाइंस की इक्वेशन को एक्सप्रेस करना है इस फॉर्म में, वेक्टर A प्लस लेमडा टाइम्स वेक्टर B. राइट? सो टेक अप द लाइन L1, वेक्टर R इक्वल्स, यहाँ पर लेमडा का रोल प्ले कर रहा है T. राइट? तो सबसे पहले आई विल ओपन द ब्रैकेट और T वाली टर्म्स को हम कलेक्ट करेंगे. सो हियर आई विल गेट आई कैप माइनस टी आई कैप प्लस टी जे कैप माइनस 2j कैप plus 3k cap minus 2tk cap. Combine these terms, I'll get I cap minus 2j cap plus 3k cap. और इन टर्म्स में से हमने t फैक्टर बाहर किया तो प्लस t टाइम्स माइनस आई कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप. राइट? तो अब ये इक्वेशन है आपकी इस फॉर्म में, जहाँ पर लेमडा का रोल प्ले कर रहा है t. So, from the equation of line L1, vector A1 is this, I cap minus 2j cap plus 3k cap, and direction vector is this, which is vector B1 equals minus I cap plus j cap minus 2k cap. Right? इसी तरीके से हम line L2 की इक्वेशन को भी इस फॉर्म में लेकर आएंगे, जहाँ पर पैरामीटर यानी कि लेमडा का रोल प्ले कर रहा है S. So, I'll get vector R equals I cap minus j cap minus k cap plus s times I cap plus 2j cap minus 2k cap. Right? So from the equation of line L2, vector A2 is this and vector B2 is this. अब डायरेक्शन वेक्टर्स को देखिए और उनके स्केलर कंपोनेंट्स की रेशो निकालिए. पहले आएगी -1/1, देन 1/2, -2 over -2. बराबर नहीं है, यानी कि लाइंस पैरेलल नहीं है. राइट? सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विल बी गिवन बाय दिस फॉर्मूला. So I'll find out vector A2 minus A1 first. So this is A2, this is vector A1. So vector A2 minus A1 will be 0 I cap plus j cap minus 4k cap. Next I'll find out vector B1 cross vector B2. Form a determinant. फर्स्ट रो आई कैप जे कैप के कैप, फिर वेक्टर B1 के कंपोनेंट -1, 1, -2, देन वेक्टर B2 के कंपोनेंट 1, 2 and -2. ऑन एक्सपेंशन you will get vector B1 cross B2 as 2i cap minus 4j cap minus 3k cap. अब हमें इस वेक्टर और इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट चाहिए. सो इट विल बी 0 into 2 plus 1 into -4 plus -4 into -3. That is -4 plus 12, which is 8. Right? Next हमें चाहिए B1 cross B2 का मैग्नीट्यूड. अब ये है आपका वेक्टर B1 cross B2. So magnitude will be given by square root of 2, which is 4, plus square of -4, which is 16, plus square of -3, which is 9. So I'll get root 29. So now shortest distance will be given by this. So put the values. This dot product was 8 and this magnitude was root 29. So absolute value of 8 over root 29, which is 8 over root 29 units. So distance between the lines is 8 over square root of 29 units.